Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes.
some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. इस वीडियो सुनाने का और दिखाने का मतलब ये था कि इस वीडियो में जो हमारे इस चैप्टर में सारे ऑर्गेनेल्स हैं उनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मौजूद था, और ये ओवरव्यू वीडियो की सूरत में आपको दिखाने का मकसद ये था कि इसमें मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको जल्दी से याद हो जाएंगी, और कोई भी सवाल आपसे होता है तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी तो काफ़ी सारे ऐसे सवालात हैं जिनके आप जवाब दे सकते हो। तो कल हम बात कर रहे थे सेल वॉल की। आज हमारे पास जो न्यू ऑर्गेनेल है और जो न्यू टॉपिक है हमारे पास सेल का, वो यूकेरियोटिक सेल का न्यूक्लियस हमें डिस्कस करना है। बेटा मेन पॉइंट्स जो हैं इस न्यूक्लियस की वो ये हैं कि सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। काम क्या होता है न्यूक्लियस का? इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास कोई डायरेक्ट रेगुलेटर्स मौजूद हैं जिनकी मदद से ये बैठ के हर वक्त जो है किसी को ऑन करना, किसी को ऑफ करना, किसी को कम करना, किसी को तेज करना, इस तरह का फंक्शन करता है। ऐसा नहीं है। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और सेल की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, यानी सेल का शेप, सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर और सेल के जो फंक्शंस हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं उसके जीनोम पर, यानी जेनेटिक मटेरियल पर। सो एज द जीन सो द स्ट्रक्चर, एज द जीन सो द फंक्शन, एज द जीन सो द एनाटॉमी।
सो इस एक्टिविटीज ऑफ सेल कहने का मकसद ये है, चूंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है तो ऑल एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करवाने के लिए जीन्स चूंकि न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं, तो जो जीन एक्सप्रेस होगी उस तरह का जो है फंक्शन या कैरेक्टर उस सेल के पास मौजूद होगा। ओवरऑल मोस्टली जो न्यूक्लियस हैं वो आपको स्फेरिकल या ओवल शेप में मिलते हैं, बट मेनी ऑफ द सेल्स आर दोज विच possess न्यूक्लियस इन लोब्ड शेप। जैसा कि WBC हमारे पास ऐसे सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो अंदर ही अंदर यूं लोब्स के फॉर्म में मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस हमेशा जो है वो ओवल या स्फेरिकल जरूरी नहीं, मोस्टली इट इज ओवल और स्फेरिकल बट मे बी इन लोब्ड फॉर्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि दो मेम्ब्रेन्स की बनी हुई होती है, ये याद रखना है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जिसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हो। हर सेल में जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें एक न्यूक्लियस का होना जरूरी है। ऑल यूकेरियोटिक सेल्स possess at least one nucleus, but some of the cells are those which possess more than one nucleus। वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। If a cell possess many nuclei, that type of cells are simply called as what? Multinucleated or सिनोसाइटिक। ऐसे टाइप के सेल्स को हम क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक कहते हैं। इस तरह के सेल आपको फंजाई में मिलते हैं। फंजाई की जो माइसिलियम है उसकी माइसिलियम के जो सेल्स हैं या उसकी जो हाइफी है वो सिनोसाइटिक होती है, मींस इट possesses many of the nuclei in a single cell। न्यूक्लियर पोर्स एक्सचेंज, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं। These microscopic pores are called as what? न्यूक्लियर पोर्स। क्या काम होता है इन न्यूक्लियर पोर्स का? न्यूक्लियर पोर्स की मदद से न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होती है या लिक्विड मौजूद होती है उसे आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। ये याद रखना है बेटा। न्यूक्लियो लफ्ज रेफर कर रहा है न्यूक्लियस को, प्लाज्म जो है रेफर कर रहा है उसकी जेली लाइक स्टेटस को। सो द प्लाज्मा ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। कैरियो लफ्ज का मतलब भी न्यूक्लियस है और लिम्फ का मतलब अगेन लिक्विड और पानी है। अ प्रोटीन फिल्ड सब्सटेंस, इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या मौजूद होता है, प्रोटीन होता है। फाइन स्ट्रेन्स, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ क्लियरली नजर आने वाले स्ट्रेन्स, धागे जैसी स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे आप कहते हो क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये क्रोमेटिन नेटवर्क का दूसरा नाम न्यूक्लियर रेटिक्यूलम भी है। रेटिक्यूलम का अगेन मतलब क्या है, फाइबर्स। सो मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिक्यूलम जो है ये किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड का। मेनली इस न्यूक्लिक एसिड में जो मेजर पोर्शन है वो डीएनए का एंड द लिटिल पोर्शन इज ऑफ आरएनए एज वेल। थोड़ा सा पोर्शन इसमें आरएनए का होता है एंड द मेजर पोर्शन न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए अपने न्यूक्लियस में पाई जाती है वो डीएनए होती है। सवाल, तो आरएनए यहाँ पर क्यों है? बिकॉज आरएनए बनता न्यूक्लियस में है, तो वो बनने वाला आरएनए जो बना है वो वहां अभी मौजूद है जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं गया। उसके अलावा जब ये डीएनए और प्रोटीन आपस में कंडेंस होते हैं, ये डीएनए एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। This protein is found in the nucleus of eukaryotic cells। ये यूकेरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद होती है और इसका काम ये है कि
इस प्रोटीन के ऊपर डीएनए वाइंड होता है और रिजल्टिंग जो खुला हुआ डीएनए था वो कंडेंस होकर छोटी सी स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो जाता है। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या नाम देते हैं बेटा? क्रोमोसोम। So these chromosomes are actually what? These are the condensed form of DNA and protein. जो डीएनए पहले क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में था वो कंडेंस होकर जब सेल डिवाइड होता है तो उस वक्त ये क्या फॉर्म करता है? क्रोमोसोम। तो यहाँ एक बात समझने की और याद करने की है, आपको सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क उस वक्त नजर आएगा जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा। When cell is going to divide, जब सेल डिवाइड हो रहा है, at that time this chromatin network will condense। ये बिल्कुल क्या होगा? कंडेंस होगा, गाढ़ा होगा, इसमें वाइंडिंग होगी और ये छोटी सी स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो जाता है। उन छोटे से फाइन स्ट्रक्चर्स को जो कि क्लियरली विजिबल होते हैं, these visible structures are now क्रोमोसोम। तो अगर आपको क्रोमोसोम देखना है तो उस वक्त देख सकते हो जब सेल डिवाइड हो रहा है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, एट दैट टाइम यू मे ऑब्जर्व क्रोमेटिन नेटवर्क। अब न्यूक्लियस का ये एक डायग्रामेटिक व्यू है। देखें, ये न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। एक ये पोर है, ये एक पोर है और एक ये पोर है। These pores are what? न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स की मदद से न्यूक्लियस के अंदर से कोई भी चीज बाहर या बाहर से कोई भी चीज अंदर जाती है, तो इनका काम ये होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है कि 2 लेयर्स की बनी हुई है। कितने लेयर्स की बनी हुई है बेटा? 2 लेयर्स की बनी हुई है। ये एक अंदर की मेम्ब्रेन है और जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है मेनली उस मेम्ब्रेन से बाहर के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अटैच्ड होते हैं। ये अंदर आपको इस तरह के ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं। दीज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स आर व्हाट? क्रोमेटिन नेटवर्क। इसमें जो फ्लूइड मौजूद है, दिस होल फ्लूइड इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के सेंटर पर या रिलेटिवली ऑन द सेंटर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो बकाया स्ट्रक्चर्स से थोड़ी डार्क होती है। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो न्यूक्लियोलस। याद रखना है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है क्या? न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस इज अ पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस का पोर्शन है जो कि बकाया न्यूक्लियस से थोड़ा डार्क होता है। तो व्हाट इज दिस? इस न्यूक्लियस का असल मकसद क्या है? असल में दिस इज द प्लेस वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स अकर। न्यूक्लियोलस सेल की वो जगह है जहां पर राइबोसोम्स बनते हैं या राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए बनता है। ये भी एक और डायग्रामेटिक व्यू है। बाहर से आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से नजर आ सकती है कि उसमें न्यूक्लियर पोर्स हैं। अगर कट करके उसके अंदर जाएं तो उसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर व्हाट? क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये सेंटर में बॉडी मौजूद है, दिस इज द न्यूक्लियोलस। और जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियर एनवेलप। एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। सो ये सारे टर्म्स आपके क्वेश्चन हैं। ये सारे टर्म्स आपके क्या है बेटा? सवालात हैं, किसी भी तरीके से ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हमने बात की क्रोमोसोम की, बिकॉज न्यूक्लियस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डीएनए है। तो डीएनए आपको न्यूक्लियस के अंदर 2 हालतों में नजर आएगा। या तो ये नजर आता है क्रोमेटिन नेटवर्क की सूरत में, या फिर ये आपको नजर आता है क्रोमोसोम की सूरत में। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे पास क्रोमोसोम है। कि जब सेल डिवाइड होता है
तो उस वक्त उसमें आपको नजर आएगा क्या, क्रोमोसोम। हर स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट होता है और मखसूस होता है। हर स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके सेल्स में अपना और खास होता है। लेट सपोज ह्यूमन के सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे 46। यूं अगर फ्रॉग का सेल लें तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे 26। सो दिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक मटेरियल और द जेनेटिक प्रॉब्लम्स। जेनेटिक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी हेल्प करते हैं। इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉर्मल then we may describe that the person is okay or fit according to the number of chromosome। नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से उसमें कोई डिजीज जो है फिर वो नहीं है। अब क्रोमोसोम बुनियादी तौर पर आपको जब नजर आएगा तो वो सेल डिवीजन के वक्त नजर आता है। तो जब ये सेल डिवीजन के वक्त नजर आएगा तो उस वक्त ये आपको यूं होता है, ये एक क्रोमोसोम, इसके साथ इसकी अटैच होती है यूं कॉपी। अब इन दोनों को अगर मैं यूं सेंटर से अलग करता हूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, ये एक और हमारे पास ये दूसरी स्ट्रक्चर। तो ये जो दो स्ट्रक्चर एक साथ मौजूद थी, आप कहेंगे कि ये एक ही क्रोमोसोम के हैं। तो ये दोनों क्रोमोसोम के ये जो पार्ट हैं, इनमें से एक एक को हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटिड। सो द क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम आर सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं वो क्या कहलवाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। अगर एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का है, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम का है, तो फिर हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो क्रोमेटिड है, इस क्रोमेटिड में एक सेंटर पर खास पोजीशन होती है। जिस जगह पर से ये दो क्रोमोसोम आपस में मिले हुए हैं, इस पोजीशन को, जहां पर ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, इस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रोमेयर। So the centromere is the place of chromosome where two chromatids are connected to each other। इस सेंट्रोमेयर से नीचे या सेंट्रोमेयर से ऊपर जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, ये कहलवाता है आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का बाजू है। सो क्रोमेटिड के ऊपर एक आर्म और क्रोमेटिड के नीचे, सेंट्रोमेयर के ऊपर एक आर्म और सेंट्रोमेयर के नीचे दूसरी आर्म। यूं अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर दरमियान में होगा तो उसके पास दो आर्म्स होंगी। सो सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हवाले से क्रोमोसोम के 4 टाइप्स हैं। According to the position of centromere, there are 4 types of chromosomes। अगर कोई ऐसा क्रोमोसोम है जिसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल दरमियान में है और एक आर्म उसकी इस तरफ है और एक आर्म उसकी इस तरफ है, मींस बोथ ऑफ द आर्म्स आर इक्वल इन साइज, ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को आप कहोगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मींस the chromosome have both equal arms। दूसरा क्रोमोसोम है जिसको आप कहते हो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी इसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, एक एंड पर वो ज्यादा होता है और एक एंड की तरफ वो कम होता है। तो रिजल्टिंग एक आर्म उसकी छोटी और एक आर्म उसकी बड़ी हो जाती है। सो सिंपली हम कहते हैं अनइक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे टाइप का क्रोमोसोम क्या कहलवाएगा? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरा टाइप है
जिसमें एक आम बिल्कुल छोटी हो और एक आम बहुत ही बड़ी हो, तो ये बिल्कुल एक ऐसा क्रोमोसोम का टाइप है जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल एक ईंट के करीब है, ईंट पर नहीं है, ईंट के करीब है। तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को आप क्या कहते हो? एक्रोसेंट्रिक। चौथा टाइप है क्रोमोसोम का इन विच सेंट्रोमियर इज ऑन द टिप ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के टिप पर मौजूद है, यानी इसको एक आर्म है सिर्फ, दूसरी है ही नहीं। तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को आप क्या कहते हो? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब एक क्रोमेटिड के अंदर कुछ और पोजीशंस भी होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, जिसको भी हम जिक्र कर लेते हैं। क्रोमोसोम की ईंट पर एक खास किस्म का डीएनए मौजूद होता है जो कि इस क्रोमोसोम को हिफाजत करता है, क्रोमोसोम की, इसको दूसरे क्रोमोसोम्स से फ्यूज होने से रोकता है। तो ऐसे टाइप का जो पार्ट है, जो ईंट है क्रोमोसोम की, वो कहलवाती है टीलोमेयर। और क्रोमेटिड के अंदर जो डीएनए का थ्रेड मौजूद है, दिस होल थ्रेड ऑफ डीएनए इज सिंपली कॉल्ड इज व्हाट? क्रोमोनीमेटा। सो इन क्रोमेटिड the threads of DNA are simply called as what? क्रोमोनीमेटा। इन क्रोमोनीमेटा में जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तस्बीह के दानों के जैसी जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, हर एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोमेयर। तो एक हो गया उसका सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को आप कहते हो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अगर इसके अलावा कोई और कंस्ट्रक्शन भी मौजूद है तो उसे आप कहते हो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यह सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसी क्रोमोसोम में ना भी होगी, किसी में एक होगी, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। सेंट्रोमेयर हर क्रोमोसोम में जरूर होगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑप्शनल है, होने या ना होने के हवाले से भी ऑप्शनल है और नंबर में भी ऑप्शनल है। इट मे बी 0 और 1 2 3 और 4। थोड़ा सा इसका बता देता हूं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है जहां डीएनए की वो जीन्स मौजूद होती हैं जो कि अक्सरियत में न्यूक्लियोलस का पार्ट हैं। किसका पार्ट है ये? न्यूक्लियोलस का पार्ट है। या आसान लफ्जों में हम यूं कहें, यहां पर वो जीन्स मौजूद होती हैं जो कि आरएनए को बनाती हैं, यानी जिनसे आरएनए ट्रांसक्राइब होता है। सो दिस इज इनफ। हमारे टॉपिक के मुताबिक इतना काफी है। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। कब ऑब्जर्व कर सकते हो आप? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जितना सेल डिवीजन का प्रोसेस आगे चलता जाएगा उतने क्रोमोसोम्स आपके लिए ज्यादा विजिबल होते जाएंगे। प्रोफेज में ये बनना शुरू होते हैं, मेटाफेज में आप इनको क्लियरली देख सकते हो, एनाफेज में क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और टीलोफेज में एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड होगा, दो नहीं होंगे। ये सेल डिवीजन में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये बर्डन होता है तो अभी उसको छोड़ दें आप। फिलहाल इतना काफी है कि हम ये क्या जो है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर किस तरह की है और ये किस तरह से हमारे पास काम होता है। सो अगेन मैं ओवरव्यू ले लेता हूं इसका। इट इज अ स्फेरिकल बॉडी। अच्छा सॉरी, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको दोबारा मैं रिव्यू कर देता हूं कि न्यूक्लियोलस हमारे न्यूक्लियस का वो पार्ट है जो कि उसके सेंटर में मौजूद होता है, और इसका जो शेप है वो न्यूक्लियस की तरह स्फेरिकल होता है। फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होगा।
एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये आपको नजर आएगा तब जब सेल डिवीजन नहीं हो रही, लेकिन जब सेल डिवाइड हो जाता है तो उस वक्त ये डिसअपियर हो जाता है, और जैसे सेल डिवीजन खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा ये अपीयर हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर, फंक्शन क्या है इसका? राइबोसोम्स एंड आरएनएज आर सिंथेसाइज्ड हियर। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? तो जवाब होगा राइबोसोम्स एंड आरएनएज आर सिंथेसाइज्ड हियर। नेक्स्ट में हमारे पास दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेन सिस्टम। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? पार्ट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान का जो हिस्सा है, इस पूरे को आप क्या कहते हो? साइटोप्लाज्म कहते हो। इन सम ऑर्गेनिजम्स साइटोप्लाज्म ऑफ सेल हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म का सेल ऐसे, कुछ ऑर्गेनिज्म के सेल ऐसे होते हैं कि उनका साइटोप्लाज्म आपको दो रीजन्स में डिवाइडेड नजर आता है, यानी सारा साइटोप्लाज्म एक जैसा नजर नहीं आता। जिसकी मिसाल है हमारे पास एमोबा। एमोबा का जो बाहर वाला साइटोप्लाज्म है उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और इनर पार्ट जो है वो ग्रेन्युलर होता है, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। यूं अगर हम ब्लू ग्रीन अलजी की बात करें तो उनका बाहर वाला साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रीन होता है और डार्क होता है, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म, और अंदर वाला चूंकि कलरलेस होता है तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लाज्म। मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में जो साइटोप्लाज्म है उसमें इस तरह की डिवीजन नहीं होती, कुछ में होती है। तो जिनमें होती है उनका हमने थोड़ा सा जिक्र कर लिया। जनरली अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप साइटोप्लाज्म अपीयर्स एज अ सेमी फ्लूइड यानी जेली लाइक, कोलोइडल। कोलोइड का मतलब होता है जिसमें आपको हल्के से दाने दाने फील हो, ग्रेन्युलर हो, दैट फिल्स द सेल, और पूरा सेल जो है इससे भरा हुआ होता है। द साइटोप्लाज्म एक्सहिबिट्स एक्टिव स्ट्रीमिंग कॉल्ड साइक्लोसिस। ये सवाल है। साइटोप्लाज्म में आपको हर वक्त एक खास किस्म की मूवमेंट मिलेगी, उस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा? साइक्लोसिस। सो साइक्लोसिस इज व्हाट? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी हर वक्त साइटोप्लाज्म में ये मूवमेंट चलती रहती है। सो साइटोप्लाज्म को सिंप्लीफाई अगर हम करें तो साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोल। साइटो मीन्स सेल, सोल मीन्स सॉल्यूशन। तो साइटोप्लाज्म का मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म दो चीजों से बना हुआ है, एक उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं और दूसरा इसका लिक्विड पार्ट और द सॉल्यूशन पार्ट जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। सो साइटोसोल क्या है? वाटरी सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, शुगर, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड एंजाइम्स। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इट कंटेन माइन्यूट ऑर्गेनेल्स। लाइट माइक्रोस्कोप पर आपको सेल के ऑर्गेनेल जनरली नजर नहीं आते, वो आपको जेली लाइक एक फ्लूइड नजर आ रही थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर आप उसको देखते हो तो यू कैन सी कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि आपको नजर आएंगे, जिन्हें आप क्या कहते हो? ऑर्गेनेल्स कहते हो। और उसमें कुछ थिन फाइबर्स और दी थ्रेड्स भी नजर आएंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन, यानी प्रोटीन के कुछ नेटवर्क होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करते हैं।